Okay, so coming to the Nuke interface. Now what I need to do is just सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा वही पूछा था मैंने. है, स्टक हो गया सर. एक मिनट. I'll share it again. अब दिख रहा है दिख रहा है सर. यस सर सर. पीएफ ट्रेड के बारे में. क्या? हाँ, पीएफ ट्रैक इसी से जाएगा, कनेक्टेड होगा. सो फर्स्ट sir. क्योंकि हमें फाइल यहाँ लाना भी है पीएफ ट्रैक का. सो फर्स्ट मैंने वही सोचा कि सो फर्स्ट वी डू अ न्यूक ट्रैक एंड देन वी विल गो टू द पीएफ ट्रैक एंड ट्राई टू ब्रिंग द फाइल इन नेक्स्ट 2-3 classes. So first let's do a tracking, simple 3D tracking in Nuke, and say for example I will take the read node, go here, and let's find the footage. I'll take this footage. This shot was recorded from mobile, so it was very, I think it was taken 5 or 6 years back by me, so it will have a very big problem issues. So I'll show you that. आपके पास भी जब आप स्टार्ट करोगे शूट करना, इफ यू हैव अ बजट फोन, सो उसमें ये चीज़ें होंगी थोड़ा प्रॉब्लम. सो इफ आई जस्ट प्ले, यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट प्रॉब्लम यू गोना फेस. सो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ब्लर है इमेज एंड देन इज फोकसिंग एंड देन इज आउट ऑफ फोकस. ऐसा होता रहेगा पूरे फुटेज में. सो राइट नाउ एज यू कैन सी, देख रहे हो पूरा इमेज ब्लर है, देन अगेन इट विल कम बैक टू द फोकस. पुराने कैमरा में ये प्रॉब्लम होता था. So let's see कि how Nuke solve this track. It will solve because I know मैंने इस पर काम कर रखा है, तो it's easy for Nuke to solve this shot. So बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करता है. I'll just put it in left side so you guys can see all the way. Okay, just make sure कि your settings should be matching your footage size. After that, you have to type camera tracker. Okay, before जब हम लोग 2D काम कर रहे थे, before when we were doing 2D tracking, we are just using 2D tracker. Now you have to use camera tracker for the 3D tracking. You can click here. Now you got lots of options to play with. So it's just the idea is same as PF track. First we need to track a shot, then we need to solve the shot, and then we need to orient the shot, so on. The same idea is here. So before doing the tracking in PF track, जब हम लोग PF track में when you were working, when you used to work, आपको point cloud दिखते थे, छोटे-छोटे point दिखते थे. यहाँ पे नहीं दिख रहा है. So first thing is how to see the points. Then we'll come back to these options in a second. So to find those points or to see those points, you have to go to this option called settings here, and you have to hit this preview features. Okay. As you click that, you'll get this points in the scene, and it will update according to your frame. Now after enabling the preview, by default ये disable रहेगा हमेशा. आपको इसको आके enable करना पड़ेगा. Every time you have to enable it. So when you are using camera tracker. Now coming back to the camera tracker, the first thing you will find is the source. Source is saying कि ये क्या sequence है. Obviously this is a sequence. I do not want the stills, so I'll put it in sequence. I'll come back to mask in a second. Then we have a next option after the mask is input. So input में is right now reading from 1 to 230 जो हमारा full sequence size है. So which you can change always. Global you already know कि global क्या करता है, input क्या करता है. The custom option is like कि हमें क्या करना, 50 से 100 ही track करना है. So you can come here and type 50 से 100. And now the tracking will only happen between 50 to 100, not all the way. It won't update, but the tracking will happen between just 50 to 100. In my case, I'm going to track from 1 to 230. So I'll just put it to that number. Okay, coming back to this option is called mask. Now, there will be some times when you do not want to Nuke to do a tracking for certain area. For example, I do not want कि माउस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इस एरिया को ट्रैक करे. I do not want कि wall के एरिया को ट्रैक करे because there is no textures in the wall.
जब इमेज ब्राइट हो रहा है वो टेक्सचर्स गायब हो जा रहे हैं. सो ये दो जगह नहीं चाहता मैं कि न्यूक ट्रैक करे इनको. सो व्हाट आई कैन डू, I can create a roto and I can just draw a rough mask here, subtracting the background and the mouse reflection. I just don't want ki ye ho. So I'll come to the first, then go directly to the last frame, select the mask and try to readjust the mask shape. Okay, so I'll keep adjusting till every 50 frame and then in between after that. So this is a little bit tedious process, but it will give you better result when tracking your footage. Any question, guys? Hello, am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. So this is the basic. आपको ये पता है कि कैसे किया जाता है. All you need to do is just keep adjusting now in between. So I'm just going little fast. It might be possible मैं कहीं पे miss कर जाऊं. So ignore that. When you guys have a time, you will have obviously you will have a time. So try fixing this thing at multiple frames carefully. गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कभी कभी क्या था मास्क ब्रेक हो जाता है तो रिजल्ट सही नहीं आता. सो जस्ट वॉचिंग कि कहाँ जस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. स्लाइडिंग टू मच मैं वहाँ पे आके एडजस्ट कर दूंगा. ठीक है. से ओवरऑल आई हैव से दिस इज व्हाट आई हैव drawn as a roto garbage mat. Now if I come back to the tracker, you can still see कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक पॉइंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं या यहाँ पे ऐड हो रहे हैं. न्यूक इज ट्राइंग टू ट्रैक दिस एरिया बट आई डू नॉट वांट. सो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, जो रोटो नोड आपने बनाया आप देख सकते हो कि कैमरा ट्रैकर के बगल में एक ऑप्शन है मास्क. आप इसको इसमें इनपुट कर सकते हो, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. एंड व्हाट यू कैन डू इज गो टू दिस मास्क ऑप्शन. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है. सो मेरा जो तरीका मैं इसी तरह से यूज करता हूं. I'll show you this option also in a second. So what I do, if I do a mask alpha, so what will happen, आप देख सकते हो यहाँ से वो एरिया हट गया. So if I just go back to none, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक पॉइंट अभी एडेड है. Now if I go to the mask alpha, it will subtract it from every single frame. There is no, अब कोई भी ट्रैक पॉइंट्स या पॉइंट क्लाउड यहाँ पे बॉन्ड नहीं होगा, इतने दूर के एरिया में बॉन्ड नहीं होगा, which is nice. मास्क अल्फा, इन्वर्ट अल्फा ऑब्वियसली इस एरिया में बस ट्रैक करेगा, बाकी एरिया में ट्रैक नहीं करेगा. Then there are some few more options. So I'll just connect this roto node here, just above the camera tracker. And what you can do, यहाँ पे आपके पास source alpha and source alpha is the same thing. So if I apply source alpha, आप देख सकते हो लास्ट टाइम जब हमने रोटो नोड को इस साइड से कनेक्ट किया था एंड वी यूज्ड मास्क अल्फा, यहाँ से पॉइंट्स हट गए ना. से कि आपको ये आइडिया नहीं है, भूल गए हो कि इसका काम क्या होता है. व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्टली कनेक्ट टू द पाइपलाइन. रोटो शुड बी फर्स्ट, देन द कैमरा ट्रैकर, एंड देन आप यहाँ पे आकर सोर्स अल्फा अप्लाई कर सकते हैं एंड इट विल गिव यू एग्जैक्ट सेम रिजल्ट व्हाट मास्क अल्फा डज. source invert alpha will do the exact same result what mask invert alpha does. Okay, and the luminance is for the brightness reading. So right now we will just ignore this too for right now. Okay, it's up to you. You want to go in the same pipeline, or it's up to you, you want to put it in a different layer. Any problem, guys?
हेलो No, sir. Sariso? Yes, sir. Yes, sir. Okay. No, sir. No problem. ओके सो नेक्स्ट थिंग इज कि अब इसको थोड़ा सा बेटर कैसे करेंगे चीज़ों पे, जैसे पॉइंट क्लाउड्स हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कैसे करेंगे, चीज़ों को चेंज कैसे करेंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज गो बैक टू द सेटिंग हियर. ओके सो द फर्स्ट थिंग यू विल सी नंबर ऑफ फीचर्स. ऑब्वियसली दीज आर कनेक्टेड टू द पॉइंट्स. सो आप इसको बढ़ा घटा सकते हो. इफ आई पुट 50 थोड़ा सा लेस पॉइंट हो जाएगा. So by default 150 is fine for this project. I have worked, so did not got any issue. Then there's a detection threshold. Now what is detection threshold? जब आप इसे increase करोगे न्यूक के हिसाब से जो एरिया पॉइंट मतलब वर्थलेस रहेगा उसके, वो हटाता चला जाए. जैसे देख सकते हो ये एरिया सब बहुत ज़्यादा ब्लरी है. जब मैं इसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो वो उसी एरिया को चूज कर रहा है ना जहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट है. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप इसको हमेशा इंक्रीज करोगे ही करोगे. सो एज यू कैन सी दिस लाइन वाज टोटली ब्लर. यहाँ पे पॉइंट क्लाउड जनरेट हो रहा था. सो इट रिमूव्ड. सो न्यूक इज वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे आपका कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा है. देन देयर इज अ फीचर सेपरेशन. नाउ फीचर सेपरेशन द लेस द नंबर द बेटर. नाउ इस केस में आप देख सकते हो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है पहले 12 था. सो 12 आप ऐसे समझ सकते हो कि व्हाट इज डूइंग कि यहाँ से पिक्सल में वो 12 पिक्सल का डिफरेंस देख रहा है कि एक वैल्यू अगर मैं इसको चूज कर रहा हूँ तो सेम वैल्यू नेक्स्ट 12 पिक्सल का डिफरेंस कहाँ पे है, तो उसको यहाँ पे लगा. सो इज चूजिंग दिस वन. बट आई वांट कि थोड़ा सा लेस हो. सो आई विल पुट 5. इससे क्या होगा कि जो भी पॉइंट क्लाउड है बहुत अच्छे कॉन्ट्रास्ट वाले एरिया पे ही जनरेट होंगे रादर देन कि बहुत लॉन्ग रेंज के पिक्सल को सेलेक्ट करेंगे. सो इफ आई पुट 2 तो ये और भी ज़्यादा क्लस्टर हो जाएगा एक ही जगह पे, विच इज़ हेल्पफुल. सो डिपेंडिंग ऑन योर शॉट आप 3 से 5 के बीच में रख सकते हो. आई पुट इट 5 राइट नाउ. लेट्स मेक इट 4. आई थिंक कि 4 इज बेटर. ओके लेट्स गो विद 4. सो ज़्यादा सबसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट एरिया में रहेगा. सो दो चीज़ मैंने चेंज किया, डिटेक्शन थ्रेशोल्ड एंड फीचर सेपरेशन. देन आपके पास यहाँ पे मिनिमम लेंथ है. मिनिमम लेंथ कहने का क्या मतलब है कि एक ट्रैक को पास होने के लिए कम से कम 3 फ्रेम तक अवेलेबल होना चाहिए. मीनिंग फॉर एग्जांपल दिस ट्रैक स्टार्ट्स फ्रॉम, ये ट्रैक स्टार्ट हुआ फर्स्ट फ्रेम से, तो 1 2 3 3 फ्रेम तक ये ट्रैक करेगा तभी जाके कैलकुलेट होगा. अगर 3 फ्रेम से कम हुआ तो इट विल बी रिमूव्ड बाय न्यूक. इट वोंट बी कैलकुलेटेड इन द एवरेज वैल्यू. देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैक थ्रेशोल्ड, विच इज ऑब्वियसली अगर आप क्लास में हो, अगर 70% आया तभी पास होगा, 70% से नीचे आया तो वो ट्रैक फेल हो जाएगा, हटा दिया जाएगा. ओके स्मूथ वगैरह को मत चेंज करना, लेट इट बी टू द डिफॉल्ट जो है वो सही है, इसको डोंट चेंज इट. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज कैमरा फ्री मोशन. इज लाइक कि राइट नाउ कैसा काम कर रही है. तो इस फ्री कैमरा, मैंने कैमरे को बस मूव कर रहा हूँ अपने हाथ से. दिस इज अ फ्री कैमरा. आई लेट इट बी एट डिफॉल्ट. आई वोंट बी चेंजिंग इट. Now I'll come back to the camera tracker here, and one option which I'm going to change is the lens distortion to unknown lens. I know कि इसका lens क्या है, मैंने Moto G था मेरे पास फोन. If I Google it I will get the lens value, but I'll just type unknown lens. Nuke most of the time मेरे को अच्छा रिजल्ट दे देता है डिस्टॉर्शन, जो कि हम लोग PF ट्रैक में नेक्स्ट देखेंगे भी कि PF ट्रैक में आप कैसे इसको अगर आपके पास लेंस डिस्टॉर्टेड इमेजेस हैं जैसे GoPro वगैरह के हो गए तो आप उसको फिक्स कैसे कर सकते हो. So I'll just go here and enable from no lens to unknown lens, and I will hit track. That is it. And just like PF track, Nuke will start doing auto track. Now this footage is pathetic. It's totally pathetic. तो रिजल्ट थोड़े से जब आप इसमें चीज़ें कंपोजिट करोगे देयर विल बी सम मिसमैच बिकॉज इमेज ब्लर हो रहा है, स्लाइड है, रोलर इसमें रोलिंग शटर का इशू है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. बट अगेन यू विल गेट अ 98% गुड रिजल्ट. कोई चीज़ कंपोजिट करेंगे जैसे हम लोग, मैं इसमें डायनासोर वगैरह कंपोजिट करके दिखाऊंगा, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट. ऐसा नहीं है, बट थोड़ा स्लाइडिंग होगा. इट वोंट बी 100% एक्यूरेट.
कभी कभी आप ये देख रहे हो यहाँ पे एक वीडियो, यहाँ भी वीडियो प्ले हो रहा है और यहाँ नोड में भी वीडियो प्ले हो रहा है. कैन यू गाइस नोटिस दैट? हेलो. यस सर. नहीं सर, अब तक नहीं करा था. सो नहीं, अगर हो रहा है तो जिसके पास कॉन्फ़िगरेशन कम है उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा. दो जगह वीडियो रेंडर होंगे ना तो आपका सिस्टम स्लो चलेगा. अगर ऐसा हो रहा है ना, व्हाट यू कैन डू इज डबल क्लिक द नोड एंड कैन गो टू एन ऑप्शन हियर कॉल्ड नोड एंड यू कैन सी हियर, हाँ या डायरेक्टली डबल क्लिक दैट नोड जिसमें आपको वीडियो प्रीव्यू हो रहा है. गो टू द नोड एंड यहाँ पे पोस्ट स्टैम्प पेज है. जस्ट डिलीट, चेक दिस बट अनचेक दिस बट बॉक्स. इससे क्या आपका वीडियो प्रीव्यू नहीं होगा. सो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा रेंडरिंग रैम आपके लिए फ्री हो जाएगा. ओके, सो माय ट्रैकिंग इज डन. द नेक्स्ट थिंग वाज, जैसे हम लोग पीएफ ट्रैक में करते थे, वी यूज्ड टू सॉल्व इट. सो विल सॉल्व हियर एंड द एरर शुड बी समवेयर अराउंड, जितना 1 से बेटर, बट आई नो कि 1 से इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा. दिस इज अ पैथेटिक फुटेज बट डजंट मैटर. ओके, सो द एरर इज 2.7. जिसको आप कम कर सकते हो, यू कैन गो टू द ऑटो ट्रैक हियर एंड आप क्या कर सकते हो, राइट नाउ सेइंग कि मैक्सिमम एरर इतना है, आप इस चीज़ को आके घटा सकते हो. एंड इससे कि मैक्सिमम एरर को मैं यहाँ पे घटाता चला जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि कुछ और एरिया जो रेड है वो हट रहे हैं एंड मैं यहाँ के डिलीट रिजेक्ट कर सकता हूँ. दैट आई कैन डू, बट आई जस्ट डू एन अनडू. आई नो कि ट्रैकिंग हो जाएगा. So I do not want to make the tracker fill right now. But आप घटाना चाहो घटा सकते हो. Oops, sorry, undo नहीं हट गया. I think I need to do a track again. Okay, I got this all. So doesn't matter. अभी ये दिख रहा है, दिखने तो कोई इशू नहीं है. Now the next thing is कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका ग्राउंड प्लेन कहाँ पे है. न्यू का you have to tell, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट आए वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली उस ग्राउंड प्लेन के हिसाब से फिक्स्ड रहे. सो टू टेल दैट व्हाट यू नीड टू डू इज वेरी सिंपल. सेलेक्ट द पॉइंट्स जो भी आपके ग्राउंड प्लेन के आसपास हैं. आई विल सेलेक्ट दिस पॉइंट्स. किसी भी फ्रेम से पिक कर लो, डजंट मैटर. आप सेंटर रखना चाहते हो, यू कैन टेक द सेंटर पॉइंट्स. आई विल टेक ऑल दिस पॉइंट्स. आई विल से राइट क्लिक एंड ग्राउंड प्लेन. ठीक है, मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया है, ये सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लिए. इज वेरी सिंपल. जस्ट सेलेक्ट द पॉइंट होल्डिंग द शिफ्ट की, राइट क्लिक, ग्राउंड प्लेन, सेट सेलेक्टेड. वंस यू डन विद दिस, नाउ यू वोंट एबल टू सी एनी ग्राउंड. आपके पास कोई ग्राउंड वगैरह नहीं दिखने वाला है. टू वॉच दैट नाउ यू हैव टू डू अ ट्रिक. देयर इज अ ट्रिक, सो वॉच केयरफुली. अगर आपको देखना है कि आपका ग्राउंड इज स्टिकिंग टू योर फुटेज, तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू. सो नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज क्रिएट अ कैमरा. जैसे अभी तक हम लोग करते आए थे, हमारे पास इसके एक स्कैन लाइन रेंडर होना चाहिए, हमारे पास कैमरा होना चाहिए, सीन होना चाहिए, सो ऑन. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कि अगर आपको देखना है कि आपका ग्राउंड प्लेन सही जगह क्रिएट हुआ है तो यू नीड अ कैमरा. आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट एक कैमरा पे ही है. हिट दिस वन. आपको टैप करके कैमरा नहीं क्रिएट करना है. यू हैव टू कम हियर, सेलेक्ट द कैमरा एंड हिट क्रिएट. आपके पास एक कैमरा आ जाएगा यहाँ पे. नाउ द फर्स्ट the viewer 1 should be connected to your footage. ये यहाँ connected होना चाहिए footage पे. And then select your camera and press 2. Okay, so this is tricky. So 1 should be connected to your footage. Select the camera and press 2. So the same viewer node will be connected with 2 different nodes. One will be your footage and second one will be your camera node. Once done, come back to this option up here and select your camera. The two should be the first here. I'll choose the white, and then the footage should be on the B. So remember, it should be flipped. Camera should be on A and the footage should be on B. Once you are done, you can see something is happening here. You'll get this option. Don't worry. Don't need to do under, you need to do over here. When you do this option, you will able to see the grid here. Now if I just play, the grid will be floating. You can see the grid is floating because we are not looking through the camera. My camera is right now in this space. I need to look through the camera.
because I have connected the camera here. So to look through the camera, I will go here to the default and I'll select camera. So if I play now, you will see this grid is sticking to the footage. Okay. Now this was, I know this is a little tricky. So just go to the new option and then आप इस वीडियो को एक बार देखना, you will be able to understand. But the process is very simple. First, viewer 1 this side, select the camera, press 2, go to the A, select the camera, choose by default only wipe and stack will be available at the first, so choose one of them, then choose your second node which is read node to the B, and then you will get this option called under and over. Select over, then go to the camera and choose from default section to the camera 1, and then you can look through the camera just like Maya. Where you can see the 3D and the 2D and the same. This is how you, if you want, you can see. Once you are happy, okay, so you can just disable it. You can come back to the point cloud. Now, sometime what will happen, this point cloud will be gone. This will happen to you guys. You won't be able to see. So if you want to see your point cloud back, you have to hit double click on the camera track. Now I want to generate one cube here. So to check my scene ki sahi hai ki nahi, so I'll right click, create a cube. If I go to the 3D scene, you can see the cube has been created. So now to connect it, it won't connect. If I just do this, it won't connect. So as you know, we will be needing some more element. अगर क्यूब को कनेक्ट करना है तो क्या यूज करेंगे? Guys, scanline render sir. Yeah, we need a scanline render. So कैमरा में आपको बहुत इजी तरीका है. Go to the camera tracker. You don't need a scanline. मैनुअली इंटर करने की जरूरत नहीं है. आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एक सीन है, एक सीन प्लस है. So we'll talk about scene plus later. Right now just select the scene and hit create. ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, जो प्रीवियस कैमरा है आपके पास एक और आ जाएगा. आप इस कैमरे पे वर्क करना चाहते हो कर सकते हो, आप इस कैमरे पे वर्क करना चाहते हो कर सकते हो. आप डिलीट, दोनों में से एक कैमरा आपको डिलीट करना पड़ेगा. दोनों आप देख सकते हो एक ही जगह पे. देयर इज नो न्यू थिंग. सो आई जस्ट डिलीट द सेकंड कैमरा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हैव अ कैमरा. सो इट वाज अ वेरी सिंपल ट्रिक. गो टू द कैमरा ट्रैकर, go to scene and hit create. Now in this method I will create everything manually. मैं सारा चीज मैनुअली बनाना चाहता हूँ. So जब मैं create प्रेस कर रहा हूँ, you can see there is one thing जो कि मैं मैनुअली नहीं बना सकता, that is camera track point. So for that need to go to the camera. The next option which we have is point cloud. I'll select that, hit create. I'll get that. Then below that I will create my own scene. आप वहाँ से भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. That is 100% correct. Okay, so now I can connect my cube here to the scene, as you can see. Okay, so the cube is at that particular point cloud. मैंने कैसे इस cube को create किया था उस particular point cloud पे. Double click कर रहा हूँ, one press कर रहा हूँ. I choose one of the point, right click, create cube. And it was created there. Right now you can't see because we need a scanline render to see that. So I'll just connect this to the scene. I want an image, so I'll choose a checkerboard for right now. Connect that. Now, if I come back here now, I will go to the scanline render now. I'll choose a scanline render. Now in the camera option, I can connect the scanline render to the same camera of our tracking shot. Okay, the cube is very large, so obviously I need to scale it down. And if the BG is not available, so right now as you can see BG is not available, so there's a scanline render BG. You can directly connect to this option and you will get your BG back. For my viewing purpose, मेरे को ये point cloud right now नहीं चाहिए. मैं नहीं चाहता कि ये दिखे, ये दिखता रहेगा. So if you do not want,
सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट क्लाउड. आप यहाँ पे कैमरा ट्रैक में देख सकते हो, देयर इज अ नेम कॉल्ड पॉइंट क्लाउड. आप यहाँ पे डबल क्लिक करो, यहाँ पे आप देख सकते हो रेंडर इज योर 2D एंड डिस्प्ले इज योर 3D. सो डिस्प्ले टैब जब प्रेस करोगे, इफ यू डू नॉट वांट टू सी हियर, आप डिस्प्ले में जा सकते हैं. एंड रेंडर इज लाइक 2D. सो अगर आप यहाँ पे नहीं देखना चाहते, गो टू द रेंडर ऑप्शन एंड स्विच इट ऑफ. आपका गायब हो जाएगा. नाउ आई नो कि बहुत सारा ऑप्शन है. सो यू हैव द वीडियो. सो इफ आई जस्ट प्ले राइट नाउ, इट विल बी फ्लोटिंग. ये बॉक्स जो होगा फ्लोट कर रहा होगा हवा में. एंड द रीजन फॉर दैट इज, just let it play once and then I will tell you कि why is floating. So if I just play, देख लो ये तरफ मूव कर रहा है. सर स्टार्टिंग ये इस लाइन पे था, बट जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, आप नोटिस करना ये कहीं और चला जा रहा है. सो लेट मी जस्ट प्ले फॉर यू गाइस. सो नोटिस करना इट शुड बी ऑन दिस लाइन. बट एट द टाइम इज मूविंग, इज स्लाइडिंग. Now, reason for the sliding is, if I go to the 3D view, आप देख सकते हो मेरे जितने भी पॉइंट क्लाउड है ना, सब इस ग्रिड स्पेस के ऊपर है. बट मेरा जब बॉक्स है ना, वो क्या हो गया, ग्रिड लाइन के नीचे चला गया है. सो इट्स वेरी इजी टू फिक्स. आपको क्यूब पर डबल क्लिक करना पड़ेगा एंड इसको आपको ग्रिड लाइन के ऊपर लाना पड़ेगा. आप जितना ऊपर लेके आओगे उतना बेटर रहता है. सो वंस यू आर डन विद दैट, नाउ इफ यू प्ले, योर स्लाइडिंग विल स्टॉप. I'll press Q ताकि ये आउटलाइंस हट जाए. Cool, guys. ओ सोते हुए लोग उठ जाओ. Yes, sir. चलो उठ गए. ठीक है. सो पहले इतना तक करो यार, क्या करना है तुम लोग को, तो नींद ही आ गया. So let's just stop the recording.